السلام علیکم، میں رضوان صدیق ہوں۔ آ، یہ لائیو سیشن ریحان اے آئی ایجوکیشن کے ٹریننگ پروگرام کا حصہ ہے، جس کا مقصد ہمیں جدید دور کے تکنیکی اور ڈیجیٹل رجحانات سے آگاہ کرنا ہے۔ آج کا ہمارا موضوع ہے دا فیوچر آف ورک، ریموٹ جابس۔ آج کے دور میں دنیا بھر میں کام کرنے کا انداز بدل رہا ہے۔ لوگ ایک ہی جگہ بیٹھ کر پوری دنیا میں روزگار حاصل کر رہے ہیں۔ آج ہم اے آئی چیٹ جی پی ٹی کے ساتھ لائیو گفتگو کریں گے اور جانیں گے کہ ریموٹ جابس کا مستقبل کیا ہے اور اس سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چلیے اے آئی پارٹنر کو سیشن میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، Hi there. I hope you are having a wonderful day. Thank you. That's kind. Yeah, doing well. What's on your mind today? آج میں آپ کے ساتھ دا فیوچر آف ورک، ریموٹ جابس پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ آپ سے ضرور. آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گا تاکہ ہماری آڈینس اس سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے۔ کیا آپ تیار ہیں؟ بالکل. ہاں میں تیار ہوں. پہلا سوال پوچھے. صرف اتنا بتا دیجئے کہ ہمارا فوکس بھوشیہ کے کام پر ہے یا ریموٹ جابس پر یا دونوں پر؟ دونوں پر، فیوچر ٹھیک ورک ہے. اور ریموٹ دونوں. جابس۔ ہاں سمجھ گیا. فیوچر آف ورک اور ریموٹ جابس دونوں پر. سرل شبدوں میں بھوشیہ کا کام زیادہ ڈیجیٹل، فلیکسیبل اور اسکلز پر آدھارت ہوگا. ریموٹ جابس میں کمیونیکیشن، ٹائم مینجمنٹ اور خود کو موٹیویٹڈ رکھنا سب سے اہم ہے. پہلا سوال پوچھیے. ریموٹ جاب کیا ہوتی ہے اور یہ روایتی 5 سے 9 والی دفتر کی نوکری سے کیسے مختلف ہے؟ ہاں سمجھ گیا. ریموٹ جابس میں آپ کہیں سے بھی کام کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ڈسپلن، صاف کمیونیکیشن اور ٹائم مینجمنٹ بہت ضروری ہے. وہیں پارمپرک نوکری میں روٹین فکس اور آمنے سامنے انٹریکشن زیادہ ہوتا ہے. پر آنے والے وقت میں ہائبرڈ ماڈل یعنی کچھ دن آفس اور کچھ دن گھر سے کام عام ہوتا جا رہا ہے. اس کے لیے ڈیجیٹل ٹول سیکھنا فائدے مند رہے گا. اوکے، اس کے مزید ڈیٹیل میں بتائیں ذرا اس کو، کیونکہ یہ سٹارٹنگ والا کوشچن ہے۔ ہیلو ہیلو، لگتا ہے کہ نیٹ کا ایشو ہوا ہے۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی، ہیلو ہیلو چیٹ جی پی ٹی۔ ہیلو چیٹ جی پی ٹی۔ ہیلو، ہاؤ کین آئی ہیلپ؟ لگتا تھا کہ یہ کوئی نیٹ کا ایشو آ رہا تھا جس کی وجہ سے ہماری بات چیت نہیں ہو رہی تھی، تو اب دوبارہ چیٹ جی پی ٹی سے ہمارے ساتھ رابطہ ہو چکا ہے۔ ہم اس سے اگلا سوال پوچھیں گے۔ موجودہ اور ہاں آنے والے سمجھ دور میں گئے. ٹھیک ہے تو موجودہ بتائیے. اور آنے والے دور میں ریموٹ جابس کی اہمیت کیوں تیزی سے بڑھ رہی ہے؟ چیک کرتا ہوں. اچھا، بہت اچھا سوال ہے. اس کی اہمیت اس لیے بڑھ رہی ہے کیونکہ ٹیکنالوجی بہتر ہو گئی ہے. کمپنیاں اب گلوبل ٹیلنٹ چاہتی ہیں اور لوگ فلیکسیبلٹی کو بھی زیادہ محبت دے رہے ہیں. آنے والے وقت میں بھی ریموٹ اور ہائبرڈ کام کا رول مضبوط رہے گا. تو اسکلز ڈیولپ کرنا، کمیونیکیشن بہتر بنانا اور ڈیجیٹل ٹولز سیکھنا لوگوں کے لیے نئے موقع پیدا کرے گا. مطلب صرف ڈگری نہیں، اسکل اور انوشاسن بھی سفلتا میں بڑی بھومکا نبھائیں گے. جی اگلا سوال. ریموٹ جاب حاصل کرنے کے لیے کون سی بنیادی ڈیجیٹل اور ٹیکنیکل مہارتیں سیکھنا ضروری ہے؟
चेक करता हूँ, बहुत अच्छा सवाल है। बेसिक कंप्यूटर स्किल्स जैसे फाइल बनाना, ईमेल करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, गूगल डॉक्स का इस्तेमाल आना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर रिमोट जॉब्स में ये ज़रूरी है। साथ ही ज़ूम या गूगल मीट जैसे मीटिंग टूल्स और स्लैक या ट्रेलो जैसे कोलैबोरेशन टूल्स की नॉलेज भी फ़ायदेमंद है। अगर किसी खास फील्ड में काम करना है तो उसकी तकनीकी स्किल्स भी सीखें, जैसे ग्राफिक डिज़ाइन के लिए कैनवा या फोटोशॉप, कंटेंट राइटिंग के लिए एआई टूल्स का इस्तेमाल, डिजिटल मार्केटिंग के लिए एसईओ या सोशल मीडिया स्किल्स, या फिर प्रोग्रामिंग के लिए पाइथन या जावास्क्रिप्ट। बुनियादी इंग्लिश, कम्युनिकेशन, टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ मोटिवेशन भी काफ़ी ज़रूरी है। इन स्किल्स से रिमोट जॉब के मौके काफ़ी बढ़ जाते हैं। मेरा अगला सवाल इसी से कुछ जुड़ा हुआ है। कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स का रिमोट वर्क में क्या किरदार है? जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। कम्युनिकेशन और सॉफ्ट स्किल्स रिमोट वर्क की रीढ़ है। जब टीम आमने सामने नहीं होती तो क्लियर, कंसाइज और रिस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी हो जाता है। मैसेज का मतलब साफ हो, रिस्पॉन्स टाइम पे हो और टोन प्रोफेशनल रहे। सॉफ्ट स्किल्स जैसे एम्पैथी, टीम वर्क, अडेप्टेबिलिटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग भरोसा बनाती है। अगर कम्युनिकेशन कमज़ोर हो तो गलतफहमियां बढ़ती हैं, कान धीमा होता है और तनाव बढ़ता है। इन स्किल्स को सुधारने से भरोसा बनता है, कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है और टीम के साथ लंबे समय तक बेहतर काम कर पाते हैं। जी, अगला सवाल। आप सॉफ्ट स्किल्स की कुछ मज़ीद मसाले मुझे दें ज़रा। बिल्कुल। कुछ और सॉफ्ट स्किल्स की मिसालें ये है: एक्टिव लिसनिंग, यानी सामने वाले की बात को ध्यान से सुनना। टाइम मैनेजमेंट, फीडबैक को खुले दिल से लेना। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी मतभेद सुलझाने की काबिलियत। अडेप्टेबिलिटी, टीम वर्क और साफ सुथरी लिखित कम्युनिकेशन। ये सारी स्किल मिलकर आपको रिमोट माहौल में ज़्यादा असरदार और भरोसेमंद बनाती हैं। इन स्किल्स के साथ सिर्फ काम पूरा नहीं होता, बल्कि रिश्ते मजबूत होते हैं और भरोसा भी बढ़ता है। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है कि नए लोग रिमोट जॉब्स या ऑनलाइन काम की तलाश कहाँ से और कैसे शुरू कर सकते हैं? ठीक है, चेक करता हूँ। बहुत बढ़िया सवाल है। नया बंदा सबसे पहले अपनी स्किल चुने, जैसे कंटेंट राइटिंग, ग्राफिक डिजाइन, वीडियो एडिटिंग, मार्केटिंग, वर्चुअल असिस्टेंस या प्रोग्रामिंग। फिर छोटा सा पोर्टफोलियो बनाएं, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं और अपवर्क, फाइवर, freelancer.com या रिमोट ओके जैसी साइट्स पर अकाउंट बनाएं। छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करें, रिज्यूमे को बेहतर बनाते रहें, स्किल्स को अपडेट करें और हर दिन थोड़ा वक्त तक जॉब सर्च के लिए ज़रूर निकालें। लगातार अप्लाई करना, नेटवर्किंग बढ़ाना और अपने स्किल को दिखाना भी है। समझ गए? जी, जी। बहुत अच्छा जवाब था आपका। अगला जवाब है मेरा, बल्कि जवाब मैंने क्या देना है, जवाब तो आपने देना है। मेरा अगला सवाल है कि घर से काम करते वक़्त काम और ज़ाती ज़िंदगी के दरमियान तवाज़ुन कैसे बरकरार रखा जाए? चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। रिमोट वर्क में बैलेंस के लिए ये करें कि काम का फिक्स्ड टाइम रखें और उसके बाद काम बंद कर दें। अगर हो सके तो घर में एक अलग वर्क स्पेस बनाएं। बीच बीच में ब्रेक लें। परिवार, एक्सरसाइज, आराम और अपनी पसंद की चीज़ों के लिए भी वक्त निकालें। काम के बाद बार बार ईमेल चेक करने से बचें। रूटीन साफ रखें, काम के घंटे तय हो और नीचे वक्त की इज्जत करें। इस रूटीन से आप रिमोट वर्क में सफल भी रहेंगे और अपनी निजी जिंदगी का संतुलन भी बनाए रख पाएंगे। ओके जी, मेरा अगला सवाल है कि रिमोट जॉब में खुद को मुनज़्ज़म रखने के लिए कौन से टूल्स और ऐप्स मददगार साबित होते हैं? चेक करता हूँ। बहुत अच्छा सवाल है। रिमोट जॉब में ये टूल्स मदद करते हैं। गूगल कैलेंडर या आउटलुक कैलेंडर शेड्यूल के लिए, गूगल डॉक्स या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस डॉक्यूमेंट्स के लिए, स्लैक या टीम्स टीम जैक के लिए, जूम या गूगल मीट मीटिंग्स के लिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए ट्रेलो, असाना या नोशन बहुत बढ़िया है। फोकस के लिए पोमोडारो टाइमर या फॉरेस्ट जैसी ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं। नोट्स और आइडियाज के लिए गूगल कीप या वन नोट ठीक रहते हैं। असली राज यह है कि टूल्स को डिसिप्लिन तरीके से इस्तेमाल करें। टूल्स सिर्फ सहायक हैं, जादू नहीं। अगर उन्हें अपनी दिनचर्या में नियमित बना लें तो प्रोडक्टिविटी और प्लानिंग दोनों बेहतर हो जाती है। बहुत अच्छा जवाब दिया आपने। मेरा अगला सवाल है कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का रिमोट जॉब्स के मुस्तकबिल पर क्या असर पड़ सकता है?
चेक करता हूँ। ये बहुत अच्छा और अहम सवाल है। एआई रिमोट जॉब्स को बदल रहा है। कई रिपीटेटिव काम आसान हो जाएंगे, जैसे ईमेल ड्राफ्ट करना, डेटा एनालिसिस या रिपोर्ट का सार बनाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नौकरियां खत्म हो जाएंगी। ज्यादा जरूरी हो जाएगा लगातार नई स्किल सीखते रहना। एआई टूल्स को समझदारी से इस्तेमाल करना, क्रिएटिव थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और ग्लोबल टीम वर्क। एआई दरअसल इंसानों की जगह नहीं लेगा, बल्कि जो लोग इसे स्मार्टली इस्तेमाल करेंगे, उनकी मांग और भी बढ़ने वाली है। तो हाँ, फ्यूचर उन लोगों का होगा जो अपनी फील्ड की समझ के साथ एआई का सही इस्तेमाल सीख लेंगे। ओके, मेरा आखिरी सवाल, हमारे इन तमाम नौजवानों के लिए आपका क्या मशवरा है जो बैनुल-अक़वामी सतह पर रिमोट जॉब हासिल करना चाहते हैं? एक मिनट, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा मशवरा ये होगा कि सबसे पहले किसी एक स्किल में अच्छी पकड़ बनाएं, जैसे डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिजाइन, कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग या वर्चुअल असिस्टेंट्स। फिर अपना पोर्टफोलियो बनाएं, लिंक्डइन पर प्रोफेशनल प्रोफाइल बनाएं, छोटे छोटे प्रोजेक्ट करके अनुभव बढ़ाएं। इंग्लिश में बुनियादी कम्युनिकेशन, टाइम की पाबंदी और प्रोफेशनल रवैया भी बहुत मदद करेगा। एआई टूल्स का इस्तेमाल सीखें और कभी सीखना बंद न करें। थैंक यू सो मच चैटजीपीटी। You're very welcome. Best of luck with your assignment. आपने रिमोट जॉब्स और काम के मुस्तकबिल के बारे में बहुत शानदार रहनुमाई फरमाई। गुड लक एंड गुड बाय। शुक्रिया, मुझे खुशी है कि बात आपके काम आई। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़। मोहतरम नाज़रीन, ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने रिमोट जॉब्स और जदीद रोज़गार के मौक़ों पर तफसील से बात की। रेहान एआई एजुकेशन की ट्रेनिंग का यही मकसद है कि हम जदीद दौर की टेक्नोलॉजी को समझें और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख़ुद को तैयार करें। सेशन में शामिल होने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।